And I feel I am very lucky to start this 2.0 like an opening batsman for this year of 2025. And for this I thank Kamran sir and Swati ma'am for giving me this opportunity today here to speak on icebreakers and energizers. What I feel when I was taking training to school and colleges, all the participants or the students were forced to sit on their chairs and to listen to someone like me. And also me being a new trainer, it was almost like an ice on the both the sides. So I think icebreaker is something which really breaks. Now in this, I would request any one of you to tell me what exactly the ice breaking means. From where this terminology of ice breaking has come. Like I said, there is ice on two ways. So that communication channel opens between the two-way communication. Yes. That need to play. Yes. So they need to know, you need to know. Yes, very good, thank you, sir. Now, the terminology of ice breaking was in 16th century when we all know that our transport medium in ancient days was through the ocean. And at that time, the breaking of ice was very necessary as the ship won't pass through it. So there was a special ship made by naval commander, and they had made the ship in such a way that the ice could be broken in small pieces and the area was getting cleared for the rest of the ships to pass on. So similar way, what I personally feel is, it is a similar way which we are given in the probably very modern era, but we still find those awkward situations by doing the training sessions. And what do you think this ice breaking terminology came into training? What do you think when it has come up? Or whether it was properly nomenclature? Yes, anyone? Yes, thank you, ma'am. So while last week I came up, while reading what was the exact from where it has come into the training. So almost in 17th century, we all know the most renowned author Shakespeare. He has written Break the Ice in one of his plays in 17th century, and that was also done to break the awkward situation between the participants. So from there, the break of the ice has come up, and probably there is no detailed thing given. Simon says. So if you have heard any time, the Simon says something. So now I am Kavita, but I am a Simon for all of you. So probably whatever I say, you have to do that. So Simon says, touch your shoulders. Simon says, pat yourself. Simon says, pick up your mobiles. Simon says, give the mobile to another person. Probably may not be suitable. Yes. Here I end my session. Thank you so much. अब उसको डील करना है, उसको किसी टॉपिक के साथ कनेक्ट करना है, यहाँ मैं उसी एक्टिविटी को कम्युनिकेशन के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। तो उसको डील करना शुरू करूँगा। ठीक है, ये बात है कि मैं बहुत अच्छा कम्युनिकेटर हूँ। और फिर मैंने इसकी एक्टिविटी करा दिया, और फिर कुछ तो पहले आया कोई बता रहा है, कोई नहीं आया। अब मैं कहता हूँ मैं ना बढ़िया कम्युनिकेटर कैसे? तो जगह नहीं छोड़ी, मैं बहुत वही खड़ा। क्यों ना? बिना मैंने जगह छोड़ी नहीं। ये तो यहाँ से मिल रहा है। राइट? मतलब कहीं ना कहीं एक्टिविटी शामिल करना है। ये तो एक एक्टिविटी उसके साथ हम कैसे कनेक्ट कर पाएंगे किसी चीजों के साथ कि मैं कैसा कम्युनिकेट करूं कि बताने के मैंने सिर्फ हैंडशेक कराया सबसे और उसके बाद उसको कनेक्ट करना शुरू कर दिया कि कम्युनिकेशन कैसे होगा मैं लोगों से मिलूंगा लोग मुझसे मिलने नहीं आएंगे मुझे जाना पड़ेगा मैं जब एक तरफ आगे बढ़ूंगा वो एक तरफ आगे बढ़ेगा तब ये ब्रीच फॉर्म होगा और जब ब्रीच फॉर्म होगा तब मैं जो कहूंगा लोग मानेंगे वो करें राइट ये अब कम्युनिकेशन की शुरुआत होगी या इसमें टीम के साथ तरीके से हो गया मैं एक टीम का एक्टिव मेंबर हूं मैं हर किसी ज्यादा मिलूंगा मैं अच्छी ज्यादा मिला और सबसे हद तक कुछ किया ताकि मैं लोगों को इनिशिएट कनेक्ट कर सकूं और लोगों के साथ काम कर सकूं तो फिर लर्निंग करने की चाहना जरूरी है आपने क्या किया हमने क्या समझा हमने क्या किया और क्या समझ में आया ये क्यों करने के बाद क्या समझ में आया क्या होगा सिर्फ नॉन वर्बल बिना कुछ बोले 93% इतना सब कुछ बोल जाता है कि 7% जरूरत नहीं है इतना आसानी से हम समझ सकते हैं और यही आज हमें पूरे सेशन में समझना है कि व्हाट एक्जेक्टली आर इन द कम्युनिकेशन हम कैसे कम्युनिकेशन हो सकते हैं शुरुआत होगी बता कि अनालाइज करना जरूरी है आइस ब्रेकर तो आपने सो दिस इज द क्विकली हम लोग जो है वो एनर्जाइज हो जाए शेक दिखाई पर आ जाए काम हमारा आसान हो जाए व्हाट इज एनर्जाइजर फिजिकल बैठे बैठे ये काम हो गया तो सब बैठे बस कुछ नहीं रिलैक्स होना ये तो उठा के मैंने बस स्ट्रेट करा दिया कुछ करा दिया बस चला लेकिन ये सोचना जरूरी है मेरे साथ बैठा राइट फॉर एग्जांपल मैं सीनियर सिटीजन का ट्रेनिंग बहुत आगे ले जा रहा है किसी ने उबासी ले गया मुझे आगे ले जा रहा है सबके फ्रेंड का चलो ये पॉसिबल तो वहां क्या करना है ये मैं मुझे सोचना पड़ेगा मुझे जो आता है मैं वो करा दूंगा ये नीड क्या कहती है मेरा ऑडियंस क्या कहता है वो देखो फिजिकल से करना है कैसे ये समझना सेकंड मेंटल एक्टिवेशन इसको मैंने बताना पड़ेगा अपने ऑडियंस को समझ लो उसी हिसाब से करो जैसे मैं ये शेयर खुद का मैं बता रहा हूं किसी ने अच्छा आंसर दिया अब आंसर चाहिए उसकी ताली बजानी हम लोग क्या एप्रिशिएट किया जबरदस्त आंसर दिया सही एप्रिशिएट करेंगे तरीका बोले क्या करेंगे ताली बजाओ ऑडियंस में और मेरा यूथ ऑडियंस है क्या करेंगे 5 ताली जैसे 1 2 3 4 5 एप्रिशिएशन बल्ब है उसे घुमाना दूसरा हाथ आगे कर लीजिए नल का टैप है उसे खोलना ठीक है आपके सामने ना किसी ने सिगरेट फूंक करके नीचे डाल दी आप उसको एक पे डाल दिया और उसको बुझाना शुरू करो नल घुमा बल्ब घुमा हल्की सी कमर गिराना शुरू करो हो गया डांस सबको मैंने करा दिया आपने इसके लिए ताली बजवा दी सब एनर्जाइज हो गए मेरा काम आसान हो गया आपको उससे खड़ा भी करा आप एज ग्रुप कोई भी बड़े आसानी से कर लेंगे राइट